Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are preparing well for your exams. Let's start with the video. I'll be solving question number 4 from exercise 5.3, in which we will solve the sum with the help of Venn diagram. Right? I'll be simultaneously solving this sum manually. राइट ताकि आपके पास सारे के सारे डिजिट्स मौजूद हों, एलिमेंट्स मौजूद हों, और फिर मैं वेन डायग्राम में जो है वो बाकायदा शेडिंग करूँगी. राइट. Okay, let's start with the sum. Universal set is given to us as the set of elements from 1 to 10, then the set A and then set B. Before making the Venn diagram, we must know that which representation we are going to use. We have already studied three types of representation. One was the disjoint sets, nothing was common. Then was the overlapping set, some elements were common. And then were the subsets, that one set lies within the other set. So let's find out from this set A and B which type of representation we are going to make. So 3 and 5, if you see, is present in this set, and 3 and 5 is also present in the other set. So we are going to draw the overlapping sets of representation, right? Because 3 and 5 is present in both the sets. Since we are supposed to prove the left hand side and the right hand side, so there must be two diagrams, one for the left hand side, another for the right hand side. So let's insert the elements inside the Venn diagram. 1, 7 and 9 from the set A, 2, 4 and 8 from the set B, and 3 and 5 will lie within the overlapping region, which is common to both. Since we are supposed to take into consideration the definition of set, क्या होता है उसके अंदर? Element should not repeat. So we cannot write 3 and 5 two times. We'll just write it once in the overlapping region. Okay. Now again for the right hand side, ये पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर बाद में जस्ट हमने शेडिंग करनी हो. And where will 6 and 10 go? Since they are a part of universal set, so we'll write it outside, anywhere outside the circle but inside the rectangle. So this is just the representation of the Venn diagram of these two sets with the help of Venn diagram. Okay, now let's see what the part is given. Left hand side में आपके पास है a minus b. a minus b क्या है? The difference of a minus b. a minus b में हम क्या करते हैं? We'll write a first, the set a first, and then minus, and then set b, then b. Okay, so a minus b में what we have to do? We remove all the elements of b from a and we'll write down the remaining elements. जो बच जाते हैं वो लिखते हैं. Let's cancel out the elements so that एक दफ़ा रिविजन भी हो जाएगी आपकी. 3 cancel, 5 cancel, और कुछ नहीं है एक जैसा, तो वो कैंसिल नहीं होगा. सो विल राइट डाउन द रिमेनिंग एलिमेंट जो बच गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 7 एंड 9. सो ये एक्चुअली आपके पास क्या है? a माइनस बी. नाउ विल रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम, राइट? a माइनस बी डेफिनेशन क्या है? वी हैव टू रिमूव b एंड विल राइट डाउन a, ओनली a, द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a. और वेन डायग्राम में कोई सा भी ऑपरेशन आपने शो करना है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दी शेडेड पोर्शन. शेडेड पोर्शन आप लाइंस से भी शेड कर सकते हैं. यू कैन आइदर मेक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइंस. सो a माइनस बी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? b को ख़त्म कर दिया, सो द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a बच गए, वो आपके पास क्या आ जाएंगे? a माइनस बी में आ जाएंगे. सो द आंसर ऑफ वेन डायग्राम इज़ एक्चुअली द शेडेड पोर्शन. सो यहाँ पे आपने की में लिख लेना है कि ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया. आप देखें a माइनस बी वेन डायग्राम में वो जो हमने पोर्शन शेड किया वो 179 उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो मैनुअली हमने सॉल्व किया उसमें भी 179 है, राइट? ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को भी पहले मैनुअली सॉल्व कर लेते हैं. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. सो व्हाट वी हैव टू डू? b कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ. सो विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? किससे डिफरेंस लेना होता है? यूनिवर्सल सेट में से, u माइनस बी. सो u आपके पास क्या है? 1, 2, 3 till 10. देन माइनस b हमारे पास क्या है? 2, 3, 4, 5 एंड 8. अगेन डिफरेंस लेना है. ये एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे. विल राइट डाउन द रिमेनिंग एलिमेंट्स. 1, 2, 3, 4, 5 कैंसिल, देन 6, 7, 8 ख़त्म, 9 एंड 10. सो ये हमारे पास क्या आ गया? बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, नाउ विल डू द शेडिंग ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इन दिस डायग्राम. अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बेसिकली
U में से पूरा का पूरा B निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ U बच गए वो हमारे पास क्या था, B कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो यहाँ पे मीन्स हमने B को नहीं शेड करना, B के अलावा जितना पोर्शन है वो हमने शेड कर देना है, राइट। विल नॉट शेड B सिंस इट इज़ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम U, सो विल जस्ट शेड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ U। अब अगर आप देखें तो शेडेड पोर्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से, 1 7 9 6 10, और यहाँ पे देखें तो ये भी वही एलिमेंट्स हैं, राइट। सो हम यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बता देते हैं कि हमने ऐसे शेड किया, ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये दीज स्लांटिंग लाइंस रिप्रेजेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप यू नो द डेफिनेशन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में बी नहीं होता, रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं। और वेन डायग्राम में हम कैसे आंसर शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शेडिंग। तो शेडेड पोर्शन यू सी रिप्रेजेंट्स द आंसर। Now here the shaded portion represents B complement. Okay, now अब हमने B complement का intersection लेना है A के साथ, तो we'll write A first. Intersection B complement, ये जो अभी हमने find किया है, it is 1 6 7 9 and 10. Okay, intersection means just the common elements. Just the common elements. कौन कौन से common elements आपके पास, 1 and 7 and you can see that 9. ओके 179, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं 179। ओके अब अगर आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास, लेट्स आई विल यूज द कलर ग्रीन। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स शेडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन ए के साथ। शेडेड पोर्शन हियर इज द रेड लाइंस, रेड लाइंस का इंटरसेक्शन ए के साथ मीन्स रेड लाइंस और ए में क्या चीज़ कॉमन है जो एक जैसी है, दैट इज़ जस्ट दिस थिंग, ठीक है। बाकी जो है वो तो ए नहीं है, ए तो सिर्फ यहीं पे है और यहाँ पे ही रेड लाइंस हैं अगर आप देखें, बाकी तो 6 10 है और वहाँ पे तो वो ए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो रेड पोर्शन का इंटरसेक्शन ए के साथ, दैट इज़ द थिंग दैट इज़ कॉमन बिटवीन ए, ठीक है, ए और द रेड लाइन। सो दिस इज़ द ओनली पोर्शन विच इज़ बीइंग शेडेड। सो ये आपके पास हमने शेड कर दिया एंड वील ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। अब अगर आप देखें ये जो चेक वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या लिखा है, 179, और यहाँ पे आंसर में भी 179 ही है, राइट। सो यू सी हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करना था कि वो इक्वल आ रही है। सो यहाँ पे देखिए ये भी 179 आ गया, ये भी 179 आ गया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट्स से ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखें तो a माइनस बी ये स्लांटिंग लाइंस हैं, यहाँ पे 179 है, और यहाँ पे दिस वाज द राइट हैंड साइड, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, चेक वाला पोर्शन इसके अंदर 179 है, सो ये 179 है। सो वी हैव प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड दैट कम्स इक्वल आ गए, राइट। सो आई जस्ट रिपीट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि वेन डायग्राम में जो आंसर होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। a माइनस बी था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी आपके पास क्या था, b को निकाल दिया, सो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स a के थे वो बच गए। राइट हैंड साइड में a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट क्या था, u में से b निकाल दिया, अब जो रिमेनिंग चीज़ बच गई वो b कॉम्प्लीमेंट है, राइट। यानी कि अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो इसके शेडेड पोर्शन से लेना है, और इसका शेडेड पोर्शन कहाँ से आ रहा है, ए इंटरसेक्शन के साथ। सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन द शेडेड पोर्शन एंड ए, दिस वाज द ओनली थिंग दैट वाज कॉमन, राइट। तो वो हमने क्या किया, उसको हमने आंसर में डाल दिया कि ये आपका जो चेक वाला पोर्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी राइट हैंड साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सम। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।